तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा जो टर्म्स हैं, जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको एक ही वीडियो में इसमें कंप्लीट कराऊंगा। तो यदि आप सभी टर्म्स का जो भी आई हुई हैं एग्जाम में उनका रिवीजन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, और इस वीडियो के समाप्त होने पर आप पाएंगे कि जितने भी टर्म्स थे उन सभी का आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया है। A ballad stanza is of 2 lines, 3 lines, 4 lines, 5 lines. The correct answer, you know very well, the correct answer is 4 line. Ballad stanza, 4 line stanza is called, also known as ballad stanza. An alexandrine is a verse line in an iambic hexameter, an iambic pentameter, a doctile tetrameter, a trochaic hexameter. The correct answer is A, an iambic hexameter. What is soliloquy? An actor's secret thought uttered aloud, secret speech. An actor's speech not to be heard by audience, an actor's speech meant for other characters. The correct answer is A, an actor's secret thought uttered aloud. What is aside? Addressed in words that the other actors are not supposed to hear. Addressed in words that the other actors are supposed to hear. Looking behind when one speaks, not paying attention. The correct answer is A. Aside mean addressed in words that the other characters are not supposed to hear. What is bucolic? Refers to the poets who wrote in praise of wine, the poets who wrote pastoral poetry, the poets who imitate Pope, the poets who imitated Wordsworth. The correct answer is B. Bucolic, the poets who wrote pastoral poetry. Pastoral poetry is also known as bucolic. Parable. Parable is a poem in paragraphs, a book in an epic, a brief tale illustrating some moral, a cure of paralysis. The correct answer is C. A brief tale illustrating some moral. Morality plays were produced in the 15th, 16th centuries, produced in 17th centuries, produced in 18th centuries, produced in the 19th century. The correct answer is A. Produced in 15th or 16th centuries. Comic relief implies the interval in the play or film, a hilarious comedy, a short humorous episode interrupting a tragedy. देखिए, कॉमिक रिलीफ जो होता है वो अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड होता है दोस्तों, जो ट्रेजेडी का जो गंभीरता है उससे दर्शकों को, ऑडियंस को बाहर निकालने के लिए रखा जाता है। कोरस is a brand of writing inks, is a group of singers in drama, is a group of beautiful actresses, is a group of DJ dancers. The correct answer is B, is a group of singers in a drama. Catharsis is related to tragedy, is related to comedy, is related to sonnetery, is related to farce. तो you know very well catharsis is related to tragedy. आप रिवीजन करिए, अपना आकलन भी आप कीजिए। Who invented and popularized the phrase poetic justice? किसने ये
इन्वेंट किया है और फेमस पॉपुलराइज्ड इसको किया है? ड्राइडन ने पोएटिक जस्टिस को, जॉनसन ने, राइमर ने, शेक्सपियर ने। तो यू नो वेरी वेल द करेक्ट आंसर इज सी, थॉमस राइमर। पोएटिक जस्टिस इज ए टर्म गिवन बाय थॉमस राइमर। कंप्लीट द सेंटेंस द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। यू नो वेरी वेल द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको बड़े अच्छे से पता होगा कि व्हाट इज द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड कैट हार्स इज, इसको थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है दोस्तों, कैथारसिस है ये कैथारसिस है, पेरिपेटिया, एपिस्टल और पोएसिस। तो द करेक्ट आंसर इज बी, पेरिपेटिया। रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून है, भाग्य का बदल जाना है, हाई से डाउन, डाउन से हाई, तो ये रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून पेरिपेटिया के रूप में जाना जाता है। आगे है दोस्तों, कंप्लीट द सेंटेंस द एरर ऑफ जजमेंट। ये भी आपको मालूम होगा, द एरर ऑफ जजमेंट इन अ ट्रेजेडी इज नोन एज। एरर ऑफ जजमेंट को एक ट्रेजेडी के अंदर किस रूप में जाना जाता है? हैमार्शिया, ट्रेजेडी ऑफ ब्लड, कैटास्ट्रोफे, कैथारसिस। तो सही आंसर है दोस्तों ए, हैमार्शिया। कंप्लीट द सेंटेंस ओटेवा राइमा इज। ओटेवा राइमा क्या है दोस्तों? कितनी लाइन का स्टेंजा होता है ओटेवा? तो 4 लाइन है, 6 लाइन दिया है, 8 लाइन दिया है, 10 लाइन दिया है। स्टेंजा फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। तो ए, 8 लाइन स्टेंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर इज नोन एज ओटेवा राइमा। कंप्लीट द सेंटेंस डर्ज मीन्स। डर्ज क्या होता है दोस्तों? एलेजी आपने सुना होगा, एलेजी सुना है तो डर्ज भी सुना होगा। ए सॉन्ग ऑफ वेडिंग, ए सॉन्ग ऑफ प्लेजर, ए सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, ए सॉन्ग ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सी, ए सॉन्ग ऑफ ग्रीफ। जैसे एलेजी होता है दोस्तों, ऐसे ही डर्ज होता है। A sudden and ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer striving for the noble or pathetic achieves the ludicrous, is the best expressed term. इस चीज को दर्शाने वाली टर्म क्या है? जो एकदम से चेंज को हम देखते हैं, परिवर्तन होता है, डिसेंट हो जाते हैं, रिडिकुलस। तो ये क्या है दोस्तों? कॉमिक रिलीफ है, बेथोस है, मेलोड्रामा है, पैराडॉक्स है। करेक्ट आंसर है दोस्तों बेथोस। यू नो वेरी वेल, आपने लिटरेरी टर्म्स के वीडियोस हमारे देखे हैं तो आपको बड़े अच्छे से चीजें स्पष्ट होंगी। द चौसेरियन स्टेंजा और राइम रॉयल कंप्राइसेस। चौसेरियन स्टेंजा कहें या राइम रॉयल कहें, इसमें कितनी लाइनें होती हैं? 7 लाइन्स, 8 lines, 9 lines, 4 lines. The correct answer is A, 7 lines. What is closet drama? Closet drama क्या होता है? Drama to be read, not to be performed. Drama to be acted in open. Drama to be read. Drama to be acted indoors. Drama to be performed in streets. देखिए सीधा सा आंसर है ड्रामा टू बी रीड, नॉट टू बी परफॉर्म्ड। व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस? पोएटिक लाइसेंस क्या है? पोएट्री रिटन टू एस्टेब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वेरीफाई एक्शन, रॉयल परमिशन टू राइट पोएट्री, liberties with language and facts in poetry, poetic norms of particular periods. The correct answer is C. Poetic license क्या है दोस्तों? Liberties with language and facts in poetry is known as poetic license. What is meant by catharsis? Catharsis का मीनिंग क्या होता है?
tragic flaw in the antagonist, tragic flaw in the protagonist, false step taken in dark, purgation of emotion of pity and fear. The correct answer is D, purgation of emotions of pity and fear. The term dystopia implies, dystopia किस ओर इशारा करता है? Pleasant imaginary world, unpleasant real world, pleasant real world, अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड। तो आपको मालूम है उटोपिया और डिस्टोपिया दोनों मैंने आपको टर्म्स के वीडियोस में बताया है। डिस्टोपिया इज ए अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड। व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलिटेरियन नॉवल? प्रोलिटेरियन जो नॉवल है उसका थीम क्या होता है दोस्तों? एरिस्टोक्रेटिक क्लास, वॉरियर्स, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास। प्रोलिटेरियन का मतलब ही होता है दोस्तों श्रमिक वर्ग, तो ये वर्किंग क्लास को इंडिकेट करता है। तो घोस्ट और मिस्ट्रीज के साथ जो एक वर्क है, द टाइप ऑफ फिक्शन, एक प्रकार का फिक्शन हुज सेटिंग इज इन द मिडिएवल पीरियड, जिसमें मध्यकालीन समय दिखाया जाता है। ऑफन इन अ ग्लूमी कैसल, एक कैसल महल दिखाया जाता है विद डंजियंस, इसमें सारी चीज़ें आपको सुपरनेचुरल एलिमेंट मिलेंगे, घोस्ट, मिस्ट्रीज, समथिंग। तो इस प्रकार का जो वर्क है, इस प्रकार का, उसको हम क्या कहते हैं? पिकारेस्क्यू नोवेल, गॉथिक नोवेल, एपिस्टोलरी नोवेल, हिस्टोरिकल नोवेल। द करेक्ट आंसर इज बी, गॉथिक नोवेल। भूतिया नोवेल आप इसको कहते हैं। गॉथिक नोवेल का मतलब ही है भूतिया नोवेल, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। एन एपिक इज ऑटोबायोग्राफिकल, ऑब्जेक्टिव, कॉमिक, एलिजेइक। एन एपिक इज ऑटोबायोग्राफिकल, ऑब्जेक्टिव, कॉमिक, एलिजेइक। तो दोस्तों जो एपिक होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा, उद्देश्यात्मक। असाइड, फ्री वर्स इज पोइट्री। फ्री वर्स किस प्रकार की पोइट्री है? रिटन इन प्रेज ऑफ फ्रीडम, कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर, हैविंग नाइदर डेप्थ नॉर कमिटमेंट, रिटन इन ब्लैंक वर्स। तो फ्री वर्स बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वीडियोस में। कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर, फ्री वर्स इज नोन एज नो रेगुलर मीटर पोइट्री। एफोरिज्म, एफोरिज्म क्या है दोस्तों? मीन्स अ लिविंग बीइंग एबिलिटी टू सर्वाइव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, इज ए स्टेटमेंट कंडेंसिंग मच विजडम इन अ फ्यू वर्ड्स, इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग पॉइजनस, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एंजाइटी। तो आपको समझ में आ गया होगा एफोरिज्म क्या है दोस्तों। बैकन को जाना जाता है उनके एफोरिज्म स्टाइल के लिए, एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए। ए स्टेटमेंट कंडेंसिंग मच विजडम इन अ फ्यू वर्ड्स, कम शब्दों में बहुत अधिक बात कह देना ही एफोरिज्म कहलाता है। आगे है दोस्तों, सिजेरा इज ए 6 feet लाइन, राइम्ड वर्ड, स्ट्रेस्ड syllable, break in a line। तो you know very well Caesarea is a break in a line or pause in a line। Which one of these is a secondary epic? इनमें से पूछा गया है कि secondary epic कौन सा है। इलियाड है, ओडिसी है, महाभारत है, पैराडाइज लॉस्ट है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों बी, पैराडाइज लॉस्ट। मैंने आपको बताया था सेकेंडरी एपिक क्या होते हैं। मूल रचना की जो इमिटेशन के साथ जो एपिक लिखा जाता है उसको हम सेकेंडरी एपिक बोलते हैं। तो पैराडाइज लॉस्ट इज अ सेकेंडरी एपिक। द राइमिंग ऑफ वॉवल साउंड्स विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इज नोन एज। देखिए राइम होना वॉवल साउंड का
विदाउट राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट इज नोन, उसको किस रूप में जाना जाता है? एलिट्रेशन के रूप में, रिद्म के रूप में, मेलोडी के रूप में, एसोनेंस के रूप में। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों डी, एसोनेंस के रूप में। राइमिंग ऑफ वॉवल साउंड इज नोन एज एसोनेंस। एनोदर नेम फॉर वर्स लिब्री, वर्स लिब्री को हम फ्री वर्स भी बोलते हैं, बहुत कॉमन है दोस्तों, आपको मालूम है। अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस। अ सिजेरा इज इन ए लाइन। क्या है दोस्तों? पॉस है, सिलेबल है, असेंट है, स्ट्रेन है। तो अभी भी हमने पढ़ा था क्वेश्चन पॉस। सिजेरा इज नोन एज अ पॉस इन द पोएटिक लाइन। द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ अ सोनेट आर कॉल्ड। किसी भी सोनेट की जो पहली 8 लाइन है वो क्या कहलाती हैं? सस्टेट कहलाती हैं, ऑक्टेव कहलाती हैं, सिजेरा कहलाती हैं और वोल्टा कहलाती हैं। तो करेक्ट आंसर बी, ऑक्टेव। बाद की 6 लाइनें सस्टेट कहलाती हैं, शुरू की 8 लाइनें ऑक्टेव कहलाती हैं। A verse of 2 lines of equal length rhyming with each other at the end is called। 2 लाइनें जो राइमिंग करती हों एक साथ एंड में क्वार्टरेन कहलाएंगी, टेर्जा राइमा कहलाएंगी, कपलेट कहलाएंगी और टेवा राइमा कहलाएंगी। तो 2 लाइनें हैं तो दोस्तों कपलेट हो गया, ध्यान रखिएगा। एन आयम्बस कंसिस्ट ऑफ, जो आयम्बस है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? 1 unaccented syllable followed by an accented one, an accented syllable followed by an unaccented one, 2 unaccented syllables followed by an accented one, 2 accented syllables followed by an accented one। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए तो उसको बड़े ध्यान से संभल के कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए, 1 accented syllable followed by an accented syllable, 1 unaccented syllable followed by an accented one is called iambus। blank verse is, blank verse क्या है दोस्तों? rhymed iambic pentameter, unrhymed iambic pentameter, doctile tetrameter, anapaestic hexameter। तो करेक्ट आंसर है बी दोस्तों, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर इज नोन एज ब्लैंक वर्स। एन अलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ। किस प्रकार की पोएट्री की जो अंतिम लाइन है वो अलेक्जेंड्राइन होती है? ओटेवा राइमा, स्पेंसेरियन स्टेंजा, राइम रॉयल, टेर्जा राइमा। द करेक्ट आंसर इज बी, स्पेंसेरियन स्टेंजा में लास्ट जो लाइन है अलेक्जेंड्राइन कहलाती है। 6 सिलेबल वाली लाइन यानी 12 टोटल सिलेबल उसमें हो जाते हैं दोस्तों। द बर्थ प्लेस ऑफ सोनेट इज इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, ग्रीस। तो करेक्ट आंसर आपको मालूम है इटली। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सटायर इज, सटायर का प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्या होता है? टू मॉन्ट, शोक करना, अराउज पिटी, दया ओरिजिनेट करना, टू प्रेज, प्रशंसा करना, टू रेडिक्यूल, फॉली और वाइस। तो करेक्ट आंसर इज डी, टू रेडिक्यूल, फॉली और वाइस। द टेर्जा राइमा इज ए स्टेंजा ऑफ, टेर्जा राइमा कितनी लाइन का स्टेंजा होता है? 4 लाइन का, 5 लाइन का, 3 लाइन का, 2 लाइन का। तो यू नो वेरी वेल 3 लाइन स्टेंजा इज नोन एज टेर्जा राइमा। हु कोटेड दीज लाइन्स अबाउट ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के बारे में ये पंक्ति किसने कही है? द पोएट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड एज इट वर द सोल ऑफ ए ट्रेजेडी, कैरेक्टर होल्ड्स द सेकेंड प्लेस। सबको मालूम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्लासिफाई किया है इन्होंने एरिस्टोटल ने कहा है प्लॉट इज द नंबर 1। हाँ, प्लॉट इज द सोल ऑफ अ ट्रेजेडी।
और कैरेक्टर को उन्होंने दूसरे नंबर पर रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से बात करना, इनमें से किस शब्द का मीनिंग है? स्पोक्समैन, गैरुलिटी, सोलोलॉकी, नन ऑफ दीज। वेरी 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 इजी, सोलोलॉकी। What is caesura in poetry? A line containing consonants, sprung rhythm, a pause indicated by a comma. तो correct answer is C, a pause indicated by a comma. ये सभी आए हुए क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जो एक ही वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ए स्पेस दे दिया है, इज ए स्मॉल डिस्क्रिप्टिव पोएम इन विच the machinery and conventions of epic proper are used in the treatment of tribal themes. ऐसा वर्क जिसमें एपिक की जो गुण हैं उनको बड़े ही ट्राइबल तुच्छ रूप में दर्शाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग, बैलेड, मोक एपिक, नन ऑफ दीज। तो जैसे ही एपिक की बात आती है तो उसका जो हास्यास्पद जो रचना है वो मोक एपिक कहलाती है दोस्तों। ए बैलेड इज ए शॉर्ट पोएम नरेटिंग अ टेल, ए पोएम रिटन ऑन समबडीज डेथ, ए प्रेयर सॉन्ग, ए मैरिज सॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज ए शॉर्ट पोएम नरेटिंग ए टेल। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं असहमत हूँ, ये शॉर्ट जो लिखा है इसको आप रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि बैलेड जो है ऐसा कहना कि ये शॉर्ट होता है ये हमेशा ही ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर पढ़ेंगे तब आप कहेंगे कि इसमें तो काफ़ी लाइनें हैं, तो इतना छोटा भी नहीं है। तो अ पोएम नरेटिंग अ टेल। अ लिरिक इज, लिरिक क्या है दोस्तों? ए पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, ए पोएम रिटन इन प्रेज ऑफ गॉड, a poem in which the poet expresses his intense personal feelings। यही आंसर है दोस्तों, पर्सनल फीलिंग, एक विचार को दर्शाने वाला जो गीत है वो लिरिक के रूप में जाना जाता है। The literary art of diminishing a subject by making it ridiculous and evoking towards it the attitudes of amusement and scorn is called allegory, no; melodrama, no; parody, no; satire, yes। The correct answer is D, satire, व्यंग, तंज इसको कहते हैं हम। An iambic pentameter line contains, iambic pentameter में 5 फीट होते हैं, 7 फीट होते हैं, 9 फीट होते हैं, 6 फीट होते हैं। कितने फीट होते हैं? तो पेंटामीटर का मतलब ही है 5 फीट। ए लॉन्ग पोएम टेलिंग द स्टोरी ऑफ द लीडर ऑफ द होल कम्युनिटी रिटन इन ए नैरेटिव फॉर्म एंड लॉफ्टी स्टाइल इज कॉल्ड। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। एक लॉन्ग पोएम टेलिंग द स्टोरी ऑफ अ लीडर ऑफ द होल कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी का जो लीडर है उसकी कहानी को बताने वाली एक लंबी कविता, रिटन इन ए नैरेटिव फॉर्म, जिसको नैरेटिव फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें स्टाइल बहुत ही लॉफ्टी उत्कर्ष होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ए ड्रामा कहते हैं, एपिक कहते हैं, शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, लिरिक कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी, एन एपिक। द आयम्बिक पेंटामीटर एम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। आयम्बिक पेंटामीटर में क्या होता है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यही क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं अलग अलग प्रकार से, इसीलिए ये फाइनल वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। इसमें आप रिवीजन कर लीजिए और फिर अपना समय अपनी स्टडी में लगाइए, अपने नोट्स को रिवाइज करने में लगाइए। बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मैं आपके लिए नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इस समय आपको डिस्टर्ब करने से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप अपना समय कितना अपने नोट्स पर दे रहे हैं, वही इस समय काम आएगा। द आयम्बिक पेंटामीटर एम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग? 5 syllables in the pattern unstressed, stressed; 5 syllables in the pattern stressed, unstressed; the pattern stressed, unstressed repeated 5 times;
द पैटर्न अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड रिपीटेड 5 टाइम्स। देखिए बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर इसको हम डाउटफुल क्वेश्चन में भी ले जा सकते हैं। 5 सिलेबस सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, 5 सिलेबस, तो 5 सिलेबल इन द पैटर्न अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड इज नोन एज आयम्बिक पेंटामीटर। थोड़ा सा ये कंफ्यूज करेगा आपको अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस के साथ। ये जो डी दिया है यहाँ 5 टाइम्स कहा है, तो सीधे सीधे उन्होंने यहाँ पे सिलेबल बोल दिया, इसलिए ये वाला आंसर करेक्ट है दोस्तों। द रेटोरिकल डिवाइस ऑफ एनाफोरा इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। एनाफोरा में क्या होता है दोस्तों? ए सर्टेन मेट्रिकल अरेंजमेंट इन लाइन्स, use of circumlocution, juxtaposing the abstract with the concrete, repeating the first word or words of successive sentence or clauses। तो you know very well एनाफोरा क्या है? रिपीटिंग ऑफ सेंटेंस है, रिपीटिंग ऑफ वर्ड्स है। ध्यान दीजिएगा, रिपीटिंग ऑफ फर्स्ट वर्ड, जो शुरुआती शब्द है उसका अगली लाइन में रिपीट होना क्या कहलाता है? एनाफोरा कहलाता है। एपिक इज ए स्टोरी ऑफ अ बैटल, अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट, ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। दोनों ही सेम है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो सी और डी तो छोड़ ही देंगे, ड्रामेटिक मोनोलॉग तो है ही नहीं। A long narrative poem on a serious subject is known as epic। Act क्या है दोस्तों? Major division of the action of a play, an acting category in a play, chapter of a play, acting by actors। तो correct answer है A, a major division in the action of a play। वर्स लिब्री इज आपको मालूम है क्लोज्ड फॉर्म है, ओपन फॉर्म है, राइम्ड फॉर्म है और कोलोफोन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान है, कई बार पूछा गया है, ओपन फॉर्म है। इसको ओपन फॉर्म वर्स लिब्री फ्री वर्स के रूप में जाना जाता है। द हेरोइक कपलेट जनरली इज, हेरोइक कपलेट क्या है दोस्तों? आयम्बिक डायमीटर, आयम्बिक ट्राईमीटर, आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर। तो अगर हम जनरलाइज वे में कहें तो सीधा सीधा आंसर है दोस्तों आयम्बिक पेंटामीटर। द रेगुलर ओड इज ए क्लोज इमिटेशन ऑफ। जो रेगुलर ओड है वो इमिटेशन है, किसकी इमिटेशन है? सबको मालूम है, मैंने ओड के प्रकार कराए हैं, पेट्रार्क, शैली, टैट और पिंडार। तो आपको मालूम है रेगुलर ओड कहो, क्लासिकल ओड कहो या पिंडारिक ओड कहो, बात एक ही है। तो उसका आंसर जो है दोस्तों वो है डी। नोवेला इज ए वर्ड फ्रॉम, नोवेला कहाँ से लिया गया है? इंडिया से, फ्रांस से, इटली से, इंग्लैंड से। करेक्ट आंसर इज सी, इटली। इन मीट्रिक मूवमेंट एंजाम्बेंट मीन्स, एंजाम्बेंट का क्या मीनिंग है? जैम्बिंग थॉट्स। कभी कभी तो जो ऑप्शन ये बनाते हैं बड़े मज़ेदार ऑप्शन बनाते हैं। ए स्ट्राइडिंग ओवर, स्टॉपिंग शॉर्ट, ए सिजेरा। ना सिजेरा है, ना स्टॉपिंग शॉर्ट है, ना जैम्बिंग थॉट्स है, सीधे सीधे स्ट्राइडिंग ओवर, आगे की ओर बढ़ जाना, स्ट्राइडिंग ओवर एंजाम्बमेंट कहलाता है। द ओबीसेंट मोटिव मीन्स, कुछ वर्ड हैं, फॉरेन वर्ड्स ले लिए जाते हैं, लिटरेचर में पूछ लिए जाते हैं, उसी में से एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो ओबीसेंट मोटिव का मीनिंग क्या है? द डांस सॉन्ग ऑफ द बिलव्ड, ए गाइडिंग मोटिव, द वेयर आर फॉर्मूला फॉर लेमेंटिंग द पास्ट। यही है दोस्तों, सी आंसर है करेक्ट आंसर। मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक मिथोस सिग्निफाइंग, मिथ जो है वो मिथोस से लिया गया है, इसका अभिप्राय है इमेजिनेशन, चिल्ड्रन स्टोरीज, आ स्टोरी प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड, कैरेक्टर्स फ्रॉम द
पास्ट। तो करेक्ट आंसर इज सी, अ स्टोरी, प्लॉट, ट्रू और इन्वेंटेड। द टर्म फॉर द नॉवेल इन मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेज। देखिए नॉवेल, द टर्म फॉर द नॉवेल इन मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेज क्या है? एपिस्टलरी, रोमन, नॉवलेट, पिकारेस्क्यू। तो करेक्ट आंसर इज सी, नॉवलेट। इसको नॉवलेट कहा जाता है दोस्तों। ये मिक्स कर लीजिएगा, आप एक साथ इनको लगा लीजिएगा। पैथेटिक फैलेसी इज ए फ्रेज इन्वेंटेड बाय। पैथेटिक फैलेसी को किसने इन्वेंट किया है? तो जॉन रस्किन बहुत ही फेमस नाम है, शेक्सपियर भी दिया हुआ है, ओलिवर गोल्डस्मिथ, कार्लाइल। द करेक्ट आंसर इज बी, जॉन रस्किन। इनफॉर्मल एसेज इज ऑल्सो नोन एज। इनफॉर्मल एसे को किस रूप में जाना जाता है? फनी एसेज के रूप में, स्कॉलरली एसेज के रूप में, फैमिलियर एसेज के रूप में, इम्पर्सनल एसेज के रूप में। तो बड़ा ही अच्छा आंसर है दोस्तों सी, फैमिलियर एसेज। द सोनेट इज अ पोएम ऑफ 10 लाइन्स, 12 लाइन्स, 14 लाइन्स, 16 लाइन्स। तो करेक्ट आंसर इज सी, 14 लाइन्स। क्लासिकल ट्रेजेडी वाज ए फॉर्म ऑफ ड्रामा, नॉवेल, प्रोज, पोएट्री। क्लासिकल ट्रेजेडी, ट्रेजेडी ड्रामा से जुड़ा हुआ शब्द है। एलेजी बिगिन टू बी सो कॉल्ड बिकॉज। एलेजी को एलेजी क्यों कहा गया? इट वॉज रिटन इन द एलेजिक मेजर, इट वॉज अ पोएम ऑफ सोरो, इट वॉज रिटन बाय राइटर्स ऑफ एलेजीज, सम एक्सपर्ट क्रिटिक्स नेम्ड इट सो। तो सही आंसर है दोस्तों बी, इट वॉज ए पोएम ऑफ सोरो। एलेजी का मतलब ही होता है शोक गीत। द नॉवेल इज, नॉवेल क्या है दोस्तों? वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, वन ऑफ द डिस्कार्डेड फॉर्म ऑफ राइटिंग, none of these. The correct answer is B, one of the latest form of writing. A dramatic monologue is, dramatic monologue क्या है? A short play है, a poem है, a novel है, a prose story है। इनमें से क्या है दोस्तों? तो dramatic monologue is also a kind of पोएम। शॉर्ट प्ले तो है नहीं दोस्तों, नॉवेल भी नहीं है, प्रोज स्टोरी भी नहीं है, तो सीधा सीधा आंसर हो गया बी, अ पोएम। व्हाट डू वी कॉल अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट। तो ऐसी चीज जिसमें ए पीस ऑफ राइटिंग दैट इज एन इमिटेशन, जो नकल है, ऑफ एन एक्शन, एक क्रियाकलाप की, दैट इज सीरियस, जो गंभीर है, एंड कंप्लीट है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमेडी कहते हैं, ट्रेजिक कॉमेडी कहते हैं, ट्रेजेडी कहते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। द करेक्ट आंसर इज सी, अ ट्रेजेडी। एल्यूजन इज ए सिनोनियम ऑफ रेफरेंस, ए सिनोनियम ऑफ पोएट्री, एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू सम इवेंट, पर्सन, प्लेस और आर्टिस्टिक वर्क। बिल्कुल ठीक, यही आंसर है दोस्तों। एल्यूजन का मतलब रेफरेंस भी होता है। यहाँ एल्यूजन और इल्यूजन को ध्यान रखिएगा। एल्यूजन का मतलब उद्धरण या उदाहरण, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। ए बैलेड, अ शॉर्ट एपिक, ए सॉन्ग sung by ballet dancers, a folk song or orally transmitted poem dealing with a particular popular story। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, सी आंसर है। ए फोक सॉन्ग है, ये पर्टिकुलर ओरल स्टोरी आप इसको कह सकते हैं। डिनोमेंट इज रिलेटेड टू, ऐसे से रिलेटेड है, प्ले से रिलेटेड है, लिरिक्स से रिलेटेड है, एलेजी से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर यू नो वेरी वेल, अ प्ले। एन इकोलॉग इज, इकोलॉग क्या है दोस्तों? ए लॉन्ग पोएम है, ए शॉर्ट पोएम है,
ए पास्टरल है, ए शॉर्ट डायलॉग है। तो इकोलॉग इज ऑल्सो नोन एज अ पास्टरल पोएम। अ डॉक्टाइल इज ए मीट्रिकल फूड कंसिस्टिंग ऑफ। डॉक्टाइल क्या है दोस्तों? 2 सिलेबल का होता है, 3 सिलेबल्स का होता है, 5 सिलेबल्स का होता है, 4 सिलेबल्स का। देखिए यहाँ से आपको एक बात और समझ में आ रही होगी कि जितनी भी टर्म्स मैंने आपको कराई हैं वो सारी टर्म्स जो है उन्हीं में से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यानी कि जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी दोस्तों वो सभी मैंने आपको कराई हैं, उनको आप अच्छे से कर लीजिए। तो उम्मीद है क्वेश्चन उन्हीं से आपको मिलेगा। 3 syllable doctile is of 3 syllable. What meter is a sonnet written in? जनरली सोनेट को किस मीटर में लिखा जाता है? तो ये सभी को मालूम होना चाहिए। आयम्बिक पेंटामीटर, द मोस्ट फेमस ऑफ इंग्लिश पोएट्स। An extended speech in which a character alone expresses his thoughts. अलोन, अकेला ही अपने थॉट्स को दे रहा है, ऑन स्टेज इज कॉल्ड। तब उसको हम क्या कहते हैं? ड्रामेटिक असाइड कहते हैं, सोलोलॉकी कहते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं, या इंटरल्यूड कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यू नो वेरी वेल, सोलोलॉक। द टर्म मेटाफिजिकल पोएट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, हेलन गार्डनर और जॉन ड्राइडन। द करेक्ट आंसर इज बी, जॉन जॉनसन या डॉक्टर जॉनसन। ए वर्स फॉर्म यूजिंग स्टेंजा ऑफ 8 lines. 8 line स्टेंजा इज नोन एज स्पेंसेरियन स्टेंजा, बैलेड स्टेंजा, ओटेवा राइमा, राइम रॉयल। द करेक्ट आंसर इज ओटेवा राइमा, ओटेवा राइमा, ओटेवा 8 लाइन, याद रखिएगा। व्हाट बाय डेफिनेशन इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ ए सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड? कॉमेडी, एपिक, ट्रेजेडी, ड्रामा। द करेक्ट आंसर इज सी, ट्रेजेडी। जैसे सीरियस शब्द आ जाए तो समझ लो ट्रेजेडी की बात कर रहा है। द आइडिया दैट द गुड आर रिवार्डेड एंड द इविल पनिश्ड। जो विचार है कि जो अच्छा है उसको सम्मान मिले, जो बुरा है उसको सजा मिले, ये क्या कहलाता है? डिवाइन जस्टिस कहलाता है, पोएटिक जस्टिस कहलाता है। बस इतना ही आप समझ लीजिए, यहीं से आंसर आपको पता लग जाएगा। इट इज कॉल्ड पोएटिक जस्टिस। एनाग्नोराइसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल। मैंने सब पढ़ाए हैं आपको, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बड़े आराम से आप आंसर बता देंगे। द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटागोनिस्ट, वह अवस्था जब अपने आप आत्मचेतन की ओर व्यक्ति जाता है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स, भैया ओडिपस कॉम्प्लेक्स अभी हाल फिलहाल में ही आपको पढ़ाया है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो अ सन्स अट्रैक्शन टुवार्ड हिज मदर, ए ब्रदर्स अट्रैक्शन टुवार्ड हिज सिस्टर। क्या है दोस्तों? सही आंसर आपको मालूम है, डी, ए सन्स अट्रैक्शन टुवार्ड्स हिज मदर। अ हाइम इज क्या है दोस्तों? पोएम ऑफ जॉय है, ए पोएम ऑफ लेमेंट है, पोएम ऑफ प्रेज है। जैसे हाइम का नाम आता है तो मुझे मिल्टन की याद आ जाती है, बहुत सारे लिखे हैं। अ पोएम ऑफ प्रेज है, चर्च सॉन्ग है। तो अ पोएम ऑफ प्रेज इज नोन एज हाइम। अ वर्क दैट मेक्स फन ऑफ अनोदर वर्क, एक ऐसी रचना जिसमें एक वर्क जो है वो दूसरे वर्क को इमिटेट करता है और फनी वे में उसको रिप्रेजेंट करता है, वो क्या कहलाता है? सटायर, फार्स, पैरोडी, फेबल। द करेक्ट आंसर इज सी, पैरोडी। नकल कहलाता है वो। ए वर्क दैट मेक्स फन ऑफ अनोदर वर्क बाय इमिटेटिंग सम एस्पेक्ट ऑफ द राइटर्स स्टाइल, इसमें वो चुरा लेता है राइटर के स्टाइल को, तो उसका स्टाइल को लिख करके दूसरी रचना बनाना वही पैरोडी है, जिसको हम नकल कहते हैं। ए सीन दैट interrupts the normal chronological sequence of event in a story
to depict something that happened at an earlier time is known as flashback, epilogue, prologue, flash forward. The correct answer is A, flashback. Strophe, antistrophe and epode form a 3-part structure. क्या होता है दोस्तों? एक क्लासिकल ओड है, ग्रीक कोरस है, मिडिएवल बैलेड है, पेट्रार्कन सोनेट है. तो आपको मालूम है स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे, इपोड आर द पार्ट्स ऑफ पिंडारिक ओड और क्लासिकल ओड. Which of the following phrase best characterizes the late 19th century aesthetic movement? Art for intellect's sake, art for God's sake, art for the masses, art for art's sake. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों एस्थेटिक मूवमेंट. A song of sorrow specially for the dead is called Song of Sorrow, दुख से भरा हुआ सॉन्ग. For the dead, satire, epic, elegy, ode. You know very well elegy. Brief story told to illustrate a point or serve as an example of something, often showing character of an individual. तो ऐसा वर्क क्या कहलाता है दोस्तों? पर्सोनिफिकेशन तो नहीं है, एनेक्डोट नहीं है, असाइड, इंटीरियर मोनोलॉग. द करेक्ट आंसर इज बी, एनेक्डोट. याद रखिएगा दोस्तों, इन्हीं में से टर्म आपको मिल जाएगी. अ टाइप ऑफ कॉमेडी इन विच ridiculous and often stereotype characters are involved in silly, far-fetched situations is known as farce, parables, fable, sentimental comedy. The correct answer is farce. A poem consisting of 4 lines or 4 lines of a poem that can be considered as a unit. 4 line कपलेट कहलाती है? नहीं. हैको? नहीं. क्वाट्रेन? यस. लिरिक? नहीं. तो करेक्ट आंसर इज सी. इन लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू रेफर्स टू. लिटरेचर में पॉइंट ऑफ व्यू हम किसको कहते हैं? हु द मेन कैरेक्टर इज, व्हेन and where the story takes place, who is telling the story, the obstacle the main character must overcome. The correct answer is C, who is telling the story. Elegies and sonnets are 2 types of. किसके टाइप हैं ये दोस्तों? ऐसे के टाइप हैं? ओहो नहीं भाई नहीं. फिक्शन के प्रकार हैं? नहीं भाई. बायोग्राफी के प्रकार हैं? नहीं सर जी. पोएम्स के प्रकार हैं? जी सर जी. The 7-line stanza is known as terza rima? नहीं सर जी. टेट्रामीटर? नो 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 नो. इंटरनल राइम? नो नो नो. राइम रॉयल? यस. Whatever rima in a sonnet consists of 8 line? पता नहीं. 6 line? पता है. बिल्कुल गलत आंसर है. 10 line? बिल्कुल गलत आंसर है. ये भी तरीका होता है दोस्तों एग्जाम में. गलत क्वेश्चन को, आंसर को बाहर कर दीजिए, सही वाला चुन लीजिए. 4 लाइन को नहीं कहते, 6 को नहीं कहते, 10 को नहीं कहते, तो अपने आप ही क्या हो गया? 8 लाइन. A story that ends with a happy resolution conflicts faced by the main character or characters, farce, satire, tragedy, comedy. हम तो कॉमेडी कहेंगे भैया. सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया उसमें बाद में. The use of language to evoke a picture or a concrete sensation of a person, thing, place or an experience is known as symbol, imagery, aphorism, simile. देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है. कम से कम ऑप्शन तो सही रख देने चाहिए. एफोरिज्म नहीं है, सिंबल नहीं है, सिमली नहीं है, तो इमेजरी हो गया भैया. The unrhymed iambic pentameter verse is called. Unrhymed iambic pentameter is known as blank versa. हाँ, blank verse कहते हैं इसको.
अ प्ले डिजाइन फॉर रीडिंग देन फॉर परफॉर्मेंस, रीडिंग के लिए तो क्लोजेड ड्रामा हम बोलेंगे भैया, क्लोज होकर के बंद कमरे में बैठ करके आराम से पढ़ेंगे। पेरिपेटिया मीन्स होता है पैर पकड़ के पलट दिया, हाँ इसका फॉर्च्यून ही पलट दो भैया तो रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून हो गया। एनाग्नोराइसिस इज एन एरिस्टोटेलियन, हाँ एरिस्टोटल की दी हुई टर्म है भाई, क्या है? द पुर्गेशन ऑफ इमोशंस, द हैप्पी रेजोल्यूशन ऑफ द प्लॉट, और उसके बाद में पूछा जा रहा है द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी, यस यही तो है, मोमेंट ऑफ डिस्कवरी है आत्मबोध हो जाना, हाँ गलती का एहसास हो जाना। द अर्लीस्ट पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर इज, अर्लीस्ट पोएम कौन सी है भैया? बियोवुल्फ, हाँ मुझे तो यही लग रहा है यही है सबसे पुरानी कविता, हाँ। फैब्लियन इज ए शॉर्ट नैरेटिव पोएम ऑफ ओरिजिन, इसका ओरिजिन क्या है? फ्रेंच है, जर्मन है, लैटिन है, स्पेनिश है, ये तो मुझे भी याद नहीं है, हाँ कहाँ कहाँ से पटक मारते हैं ये लोग, ये फ्रेंच ओरिजिन। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते किसी को नहीं पता होते। द टर्म कल्चरल मटेरियलिज्म इज एसोसिएटेड विद, कल्चरल मटेरियलिज्म किससे एसोसिएटेड है? स्टीफन ग्रीनब्लाट, रेमंड विलियम्स, यही करेक्ट आंसर है दोस्तों। द नॉवल फॉर्म विच डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, माइंड का डेवलपमेंट दिखाया जा रहा है, एडल्टहुड की ओर जा रहा है प्रोटागोनिस्ट, तो ये कहलाता है बिल्डंगर्स रोमन, ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इस बार के लिए, याद रखिएगा आप, आ सकता है एग्जाम में इस बार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डिक्शन मीन्स, डिक्शन का मीनिंग है दोस्तों डिवाइसेस ऑफ स्पीच, डिवाइसेस ऑफ मीटर एंड राइम, सिंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर, फिगर्स ऑफ स्पीच, तो डिक्शन डिवाइसेस ऑफ मीटर एंड राइम, डिवाइसेस ऑफ स्पीच, द करेक्ट आंसर इज सी, सिंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर। द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, सोल ऑफ ट्रेजेडी क्या है? सीन, कैरेक्टर, स्पेक्टिकल, प्लॉट, हम तो इसको कहेंगे प्लॉट को भैया, आप और कोई सा सेलेक्ट कर लेना, हम तो इसको सेलेक्ट करेंगे। द वर्ड कैथारसिस इज टेकन फ्रॉम द फील्ड ऑफ, कैथारसिस कहाँ से लिया गया है? इस पे मुझे क्वेश्चन पे डाउट होता है, मेडिसिन से, एस्थेटिक मूवमेंट से, मिलिट्री से, स्पोर्ट्स से, तो चलो इसको ही दे देते हैं, हाँ मेडिसिन से। तो ये थे दोस्तों अभी तक के आए हुए क्वेश्चंस जो लिटरेरी टर्म से पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में, तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, और रिवीजन करिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा वीडियोस की तरफ मत जाइए, अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।